शाबाश भाई आ जाओ। हाँ इतने काफी जगह पे वो है ना बदले भाई और फिर तो हां वो काम शीला तुम ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਨ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ माला वो तो निकालो परम आदरणीय भंते, और धर्म प्रेमी सज्जनों सन्नारियों, मुझे बताया गया कि कुछ युवक युवतियां ऐसी हैं कि जिन्हें हिंदी नहीं आती, तो उनके लिए थोड़े से शब्द अंग्रेजी में बोलूं ताकि उन्हें बिल्कुल निराश न होना पड़े, और फिर अधिक लोगों के लिए हिंदी में धर्म के बारे में दो शब्द कहूं। For the benefit of those who do not understand Hindi language, and today's discourse will be only in Hindi language, I am asked by the management that I say few words in English. A Buddha, an enlightened person, teaches Dhamma, not a sectarian Dhamma, universal Dhamma. His teaching is for one and all. His teaching is such which cannot be objected by anyone, provided one practices it properly
as a Buddha wants one to practice. His teaching is nothing but an art of living, a way of life, a code of conduct. How to live peacefully, how to live harmoniously within oneself, and how to generate nothing but peace and harmony for others, so that others can also live peacefully, harmoniously. This is what an enlightened person teaches. So long as one keeps on generating defilements on the mind, anger, hatred, ill will, animosity, passion, fear, jealousy, any defilement, one keeps on rolling in misery. Every defilement brings nothing but misery. An enlightened person realizes it and finds a way out, how to eradicate these defilements, how to change the habit pattern of the mind, not to react to the experiences of the life by craving or by aversion. This cannot happen merely by sermons, for which one has to control one's mind. He gives a technique to control the mind, to develop the mastery over the mind. And the technique is universal, which can be practiced by one and all. Observe your own respiration, natural respiration. Anyone and everyone can do it. One belonging to this sect or that sect makes no difference. This caste or that caste makes no difference. This community or that community makes no difference. One starts getting benefit. But when you develop mastery over the mind, you are not purified it. To develop the mastery of the mind is essential to live the life of morality. You live the life of Sila, the 5 precepts that you take. Not to kill, not to steal, abstain from sexual misconduct, not to speak lies, not to use any intoxicants in life. These 5 precepts one cannot observe unless one has got mastery over the mind. By developing mastery over the mind, one can live a moral life, a good life, but still, if deep inside, at the unconscious, at the half-conscious level, there remains defilements, impurities, then time and again, they keep on overpowering you. And again you become miserable. How to eradicate those deep-rooted impurities, for which he found a wonderful way, called Vipassana. You start observing yourself. You realize the truth pertaining to yourself. Yourself means this mind-matter phenomenon. At the experiential level, one starts observing the reality pertaining to oneself within oneself by observing whatever one feels on this physical structure. This physical structure is strongly related to the mind. Mind and matter are strongly interrelated. Anything that arises on the mind, anger, hatred, ill will, passion, fear, anything, not even that, even a thought that arises on the mind, it must arise with a sensation on the body. This is the law of nature. He taught this wonderful technique so that people can observe these sensations on the body equanimously, without craving, without aversion. When you experience pleasant sensation, the habit pattern of the mind is to react with craving. When you experience unpleasant sensation, the habit pattern is to react with aversion.
And every time you react with craving or aversion, you become miserable. And you keep on multiplying this misery by repeating this reaction of craving and aversion, craving and aversion. He found out a wonderful way. Observe your sensation. Whenever an impurity arises on the mind, observe your sensation. Being an enlightened person, and this was his enlightenment, that he explored the truth pertaining to matter, pertaining to mind, at the subtlest level. And he also explored the truth which is beyond mind and matter, which is called Nibbana. Then nothing remained unknown to him. It became so clear to him that as and when any impurity arises on the mind, two things start happening at the physical level simultaneously. One at a little gross level, other at a little subtler level. At the gross level, your breath will not remain normal. Whenever there is anger or hatred or passion or fear or craving, any impurity in the mind, your breath will lose the normality. It will become hard. It will become fast. And so also, simultaneously, you will have some biochemical reaction on the body, some electromagnetic reaction on the body, some sensation on the body. And as and when an impurity arises on the mind, and you start observing either your respiration, or still better, if you can observe your sensations objectively, these impurities cannot overpower you. They pass away. And your old stock of impurity will also start passing away. Layers after layers of the accumulated impurities will get peeled off, will get eradicated, provided you can observe these sensations objectively, without identifying yourself with the sensations, without craving, without aversion, maintaining perfect equanimity. And this is what was called Vipassana. It helped not hundreds, not thousands, but millions of people in India during those days, 25 centuries back. Then it started spreading to different parts of the world, and people got benefited. But after a few centuries, the technique was lost, or it got mixed up with certain things. It lost its purity. Fortunately, one country, a neighboring country of India, Burma, it maintained it in its pristine purity, although it remained with very few people. But from generation to generation, from teacher to pupil, it was maintained in its pristine purity. I feel myself very fortunate that I got it. I got highly benefited by it. And now when I distribute it to people from different walks of life, people from different castes, different communities, people belonging to different religions, of different countries, makes no difference. Human being is human being. When they get this beautiful Dhamma, this universal Dhamma, non-sectarian Dhamma, people appreciate it so much. Large number of people from different countries have started practicing it, and they get benefit from it. Accepting Buddha's teaching at the devotional level is very good. Accepting Buddha's teaching at the intellectual level is very good. But still, unless you practice it, you won't get the real benefit that you should get by the practice, by the teaching of Buddha. Accepting it at the devotional level, at the emotional level, because you got great respect in Buddha, is good for you, because that will give you good inspiration, it will give you good guidance. So also accepting the teaching of Buddha at the intellectual level is very good for you,
It will give you good inspiration, good guidance, but the actual benefit that you are going to get will be by practicing. It is the applied Dhamma which gives wonderful result. Merely the theoretical aspect of Dhamma will not help anybody. It helps only in the sense that it gives inspiration so that you can practice it. Therefore, I am very pleased that Reverend Bhante gives so importance to the practical side of Dhamma. And I was going through one of the books of Baba Sahib Ambedkar, and I found that he was giving so much emphasis on the practice of Dhamma. So if you really want to get benefit from the Dhamma, it has to be applied in life. Then only you come out of your misery. Now courses are being given, courses of Vipassana, 10 days courses are being given, 3 days courses are being given. You should find time to join them, participate, and then you will taste the nectar of Dhamma as taught by Buddha. May you all enjoy real peace. May you enjoy real harmony, real happiness by tasting the nectar of Dhamma as taught by Buddha. जब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है, बुद्ध बन जाना किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, मोनोपोली नहीं होती। भगवान गौतम बुद्ध के पहले भी न जाने कितने बुद्ध हुए जिनकी कोई गिनती नहीं, और आगे भी न जाने कितने बुद्ध होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाता है तो खुद तो सारे दुखों से मुक्त हो ही जाता है, और मन इतना निर्मल हो जाता है, सारे विकारों से छुटकारा पाकर मन इतना निर्मल हो जाता है, अनंत मैत्री से भर उठता है, अनंत करुणा से भर उठता है, अनंत मुदिता से भर उठता है, अनंत उपेक्षा भाव से भर उठता है। तो करुणा और मैत्री की वजह से लोगों को बांटता है, बड़े खुले हाथों बांटता है। अधिक से अधिक लोगों का कैसे भला हो जाए, कैसे कल्याण हो जाए, ये दुखियारे लोग अपने दुख के बाहर कैसे निकल आए। जो लोग उनकी बताई हुई विद्या को स्वीकार करके अपने जीवन में उतारते हैं, सचमुच दुखों के बाहर हो जाते हैं। लेकिन धर्म इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि इसकी पवित्रता को कायम रखना बड़ा कठिन होता है। धर्म की शुद्धता को कायम रखना बड़ा कठिन होता है। 2, 4, 500 वर्ष तक तो बड़े शुद्ध रूप में चलता है, उसके बाद उसमें मिलावट आने लगती है, सम्मिश्रण होने लगता है, तो धर्म का सार छूट जाता है, छिलके हाथ में रह जाते हैं, लोगों को लाभ नहीं होता। और जब लोगों को लाभ नहीं होता तो उनको कोई भी अपने स्वार्थ के मारे दूसरी ओर धकेल के ले जाता है। पुरोहितगिरी के जंजाल में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि सही धर्म का लाभ तो मिल नहीं रहा, पूरी बातों से कुछ होता नहीं, तो लोग इधर उधर भटकने लगते हैं। ऐसा होता ही रहता है, बार बार ऐसा हुआ। कोई भी बुद्ध जब लोगों को धर्म सिखाता है, जितने दिनों तक लोग उसका अभ्यास करते हैं उतने दिनों तक धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम रहता है। उसके बाद कोरी बातें रह जाती हैं, लोग धीरे धीरे बुद्ध की वाणी को तो भूल जाते हैं। जैसे अभी अभी आदरणीय भंते जी ने कहा, उन्हीं शब्दों को और लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बात तो वही है, लेकिन लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन केवल शब्दों को इस्तेमाल करने से कुछ बनता बनाता नहीं, क्योंकि उनको अपने जीवन में उतारना तो भूल गए।
अपने मन का राग कैसे दूर हो, अपने मन का द्वेष कैसे दूर हो, अपने मन का हर विकार कैसे दूर हो। क्रोध, वासना, भय, जब तक विकारों से चित्त विकृत है तब तक चैन नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती, दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। कोई आदमी ये समझे कि मुझे बार बार गुस्सा भी आता रहे और भीतर बड़ी शांति भी रहे, ये दोनों बात साथ चलेगी नहीं, हो नहीं सकता। विकार जब तक मन के दूर नहीं होंगे तब तक छुटकारा नहीं होगा दुखों से। कोरी बातें रहे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, वासना बहुत अच्छा है, आसान है, उपदेश की बात है। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, शराब नहीं, अच्छी बात है, उपदेश की बात है। कैसे नहीं करनी चाहिए वो तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। शराब पीने वाला खूब जानता है मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआरी खूब जानता है मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बात सुनता है, धर्म गुरुओं से सुनता है, अपने बड़े पुरखों से सुनता है, जुआ खेलना ठीक नहीं, शराब पीनी ठीक नहीं। व्यभिचारी जानता है व्यभिचार करना ठीक नहीं, पर क्या करे बेचारा, जब समय आता है तो कर ही गुजरता है, फिर रोता है, पश्चाताप करता है, मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर पछतावा करता है, फिर मौका आता है वैसा ही कर जाता है। क्यों कर जाता है? मन वश में नहीं है। भगवान ने जो मन वश में करने की बात सिखाई वो अगर हमने नहीं अपनाई तो हम अपने दुर्गुणों से दूर नहीं हो सकते, हम अपने व्यसनों से दूर नहीं हो सकते, हम अपने दुखों से दूर नहीं हो सकते। तो पहली बात ये कि मन को वश में करना सीखें। मन वश में होने लगे तो फिर जितने दुर्गुणों की ओर जाते हैं उससे अपने आप बचाव होना शुरू हो जाएगा। और उसके आगे फिर एक कदम और सिखाया कि जब जब हम अपने मन को वश में करके कोई दुर्गुण नहीं करते हैं, शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे अन्य प्राणियों की हानि हो जाए, तो अच्छी बात तो है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, औरों की हानि नहीं करनी है, उसे हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीनी, बड़ी अच्छी बात, समाज में लोग अच्छी तरह रहेंगे, सबको सुख शांति होगी। लेकिन अपने मन के भीतर जो गहरे विकार न जाने कब कब के दबे हुए हैं वो तो कायम रहे वैसे के वैसे, उनसे तो छुटकारा नहीं हुआ, और वो बार बार ज्वालामुखी की तरफ फूटेंगे और फिर सिर पर सवार हो जाएंगे, फिर हमको अपने वश में कर लेंगे। तो जब तक उनको दूर नहीं कर दें तब तक हमारा छुटकारा होता नहीं। कोई बुद्ध बने या न बने, क्योंकि पहले बुद्ध हुए हैं, इसलिए उनकी वाणी लोगों की अन्य ग्रंथों में पैरती हुई चली आई। इसलिए चाहे कोई बुद्ध बने या न बने, शील सदाचार की चर्चा तो हमेशा रहेगी। सभी कहेंगे हिंसा मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, इत्यादि इत्यादि। मन को वश में करने की बात भी रहेगी, मन के विकार जड़ों से निकाल देने चाहिए, ये बात भी रहेगी, पर बात ही बात रहेगी, करें कैसे? बुद्ध हो जाए तो सबसे बड़ी खूबी ये होती है, करें कैसे? कहना बड़ा आसान, करें कैसे? और जब तक करना नहीं आया तब तक कहना किस काम का, तब तक सुनना किस काम का? करना आना चाहिए। बुद्ध की यही विशेषता होती है कि करना सिखाता है, ऐसे करो। तो विपश्यना बुद्ध जब सिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में इसके पहले कोई विपश्यना ही नहीं थी। अरे इसके पहले बहुत बुद्ध हुए, और जो बुद्ध हुआ उसने विपश्यना ही सिखाई, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 8 अंग वाला मार्ग यही सिखाया। और ये मार्ग तब तक पूरा नहीं होता जब तक विपश्यना नहीं होती। केवल शील सदाचार का पालन कर भी ले तो धर्म का पूरा पालन नहीं हुआ, समाधि से मन को वश में कर भी ले तो भी पूरा नहीं हुआ। विपश्यना से अपने मन के विकारों को दूर कर दे, मन को विकारों से मुक्त कर दे, तो धर्म परिपूर्ण हुआ, तो धर्म परिशुद्ध हुआ। तो जो करना तो भूल गए, लेकिन इसकी चर्चा तो पहले भी रही। भगवान बुद्ध के पहले जो साहित्य हमें मिलता है भारत में, वेद का साहित्य पुराना है, उसमें विपश्यना की चर्चा आती है, एक से अधिक जगह चर्चा आती है, और बड़े प्रशंसा के शब्दों में आती है।
बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऋग्वेद का एक ऋषि कहता है, यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सन पार्षदति द्विष। यो विश्वाभिविपश्यति भुवन, जो विपश्यना करता है, बड़ी प्रशंसा करता है वेद उसकी। जो विपश्यना करता है कैसे करता है? विश्वाभि, विश्व के अभिमुख होकर के। पुरानी भाषा है किसको विश्व कहते थे? जिसका विशदीकरण हो रहा है, फैले ही जा रहा है, फैले ही जा रहा है। ऐसा प्रपंच जो फैलता ही है, ये हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। भीतर प्रपंच ऐसा फैलता है। जरा एक प्रपंच शुरू तो करो, जरा क्रोध शुरू करो, फिर देखो कितना बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। वासना शुरू करो, कैसे बढ़ती है, बढ़ती है। भय शुरू कर दो, कितना बढ़ता है, बढ़ता है। ये प्रपंच भीतर ही भीतर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसके अभिमुख हो करके, माने इसको साक्षी भाव से देख करके, संच पश्यति, सम्यक रूप से विपश्यना करनी है। सम्यक रूप से वो कि जिसमें राग नहीं हो, जिसमें द्वेष नहीं हो, केवल साक्षी भाव हो, तो सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा जो करता है, सन पार्षदति द्वेष है, वो द्वेष के बाहर हो जाता है, द्वेष का नामो निशान नहीं होता। सन पूपाविता भवति, वो बड़ा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पूज्य हो जाता है। अरे हो तो जाता है भाई, पर करें कैसे? बात ही बात न केवल। अब वही बात जो किसी बुद्ध की वाणी चलते 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 सारे साहित्यों में समा गई, वाणी वाणी रह गई, शब्द ही शब्द रह गए, करना तो भूल गए, कर्मकांड बन गए। अब इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके कहीं आग में घी डाल दो, ये मंत्र का इस्तेमाल कर लो, ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। विपश्यना से उससे क्या लेना देना, भूल गए लोग। इसीलिए जब भगवान बुद्ध ने ये विद्या फिर से खोज निकाली, तो कहते हैं पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुरुत्पादि। अरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हमारे। पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु, ऐसे धर्म में जो कभी सुना ही नहीं। कैसे नहीं सुना भाई? ये वेद तो कायम थे ना पहले, बुद्ध के पहले भी कायम थे। और उसके पिता ने तो उन दिनों के जितने पंडित थे, उन दिनों के जितने शास्त्र थे, वो सब उनको सिखाए। 29 वर्ष की उम्र में कोई छोटा बालक नहीं घर छोड़ के भाग गया। 29 वर्ष की उम्र में भागवत को जानकर, सीखकर, तब सच्चाई को जानने के लिए घर बार छोड़ता है जो व्यक्ति। बहुत कुछ पढ़ा है, फिर भी कहता है पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु। वो इसीलिए कि वो तो केवल कर्म कांडों के मंत्र बने रह गए, करना तो नहीं आया ना धर्म। वो जो धारण किया जाए, जो धारण नहीं किया जाए वो धर्म कैसा? तो धारण करना तो लोग भूल गए, अब धारण कैसे किया जाए ये बात पकड़ में आ गई। यही तो बोधि, यही उनका ज्ञान। बातें तो अब तक होती ही थी। शील सदाचार की बात बुद्ध के होते हुए भी उस समय के जो आचार्य थे, उनमें से कई आचार्य ऐसे थे जो शील सदाचार को महत्व देते थे। कुछ ऐसे भी बावले थे जो कहते थे शील सदाचार की जरूरत नहीं है, ऐसा ध्यान सिखाएंगे, ऐसा आनंद आएगा और मन में जो आए सो करो। आज भी ऐसे बावले आचार्य हैं, उन दिनों भी हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो शील सदाचार को बहुत महत्व देते थे। ऐसे थे जो बहुत अच्छी समाधि वाले थे। स्वयं उनके पास जाकर के भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध बनने के पहले बोधिसत्व ने 8 ध्यान सीखे। तो समाधि तो थी बुद्ध के पहले भी, बहुत गहरे ध्यान थे बुद्ध के पहले भी, और प्रज्ञा भी थी। उन्हीं समाधि सिखाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि ये बहुत प्रज्ञावान है, इसमें प्रज्ञा भी है। तब फिर बुद्ध में और उनमें क्या फर्क हुआ? ये सारी प्रज्ञा केवल बुद्धि की प्रज्ञा, बुद्धि विलास की बात, वाणी विलास की बात, श्रद्धा की बात, मानने की बात। बार बार भगवान पूछते हैं किंग मन्यति, क्या मानते हो भाई? मैं ये मानता हूँ महाराज कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुख है, सब कुछ अनाथ। मानते ही हो ना, जानते तो नहीं ना। मानने से क्या हुआ? अब जानो इसे। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानना काम नहीं आया। 1000 कहते रहोगे सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नश्वर है, तो केवल कहते रहोगे और मान रहे हो, उसकी अनुभूति तो नहीं हुई, तो आसक्ति उतनी ही बनी रहेगी, राग उतना ही होगा, द्वेष उतना ही होगा। सारे के सारे मन के विकार उसी प्रकार बने रहेंगे। जिस दिन उसे जान लोगे, विपश्यना जानने के लिए अंतर्मुखी होकर जानने लगे, अरे कितना अनित्य है ये सारा शरीर स्कंद,
प्रतिक्षण उत्पाद व्यय उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। इस सारी अनित्यता को अपनी अनुभूति से समझ जाएंगे। सारा चित्त स्कंद कैसे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, शरीर के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो जाएगी, चित्त के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो जाएगी। शरीर और चित्त के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो गई तो मैल निकलना शुरू हुआ, और गहराइयों में जाते चले गए और गहराइयों से मैल निकलने लगा। मैल निकलते निकलते ऐसी अवस्था आएगी कि चित्त और शरीर के परे की अवस्था, जो इंद्रियातीत अवस्था है, जो भावातीत अवस्था है, भवातीत अवस्था है, लोकातीत अवस्था है, उस अवस्था का साक्षात्कार हो जाएगा जहाँ कुछ उत्पाद होता ही नहीं, तो व्यय होता ही नहीं, अमृत का साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ही उसका साक्षात्कार होकर के फिर इंद्रिय जगत में आया ध्यान करता हुआ, आदमी ही बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। ऐसा बुद्ध के समय भी हुआ। ऐसा जब तक ये कल्याणकारी विद्या कायम रही और लोग इसका इस्तेमाल करते रहे, जहाँ जहाँ कायम रही वहाँ वहाँ ऐसा होता रहा। आज भी ऐसा होता है। किस प्रकार लोग बदल जाते हैं, किस प्रकार व्यसनों में डूबे हुए लोग, दुखों में डूबे हुए लोग कैसे अपने दुखों के बाहर आ जाते हैं। संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए कितने प्रकार के दुख हैं, कितने प्रकार के दुख हैं। जब देखो तब अनचाही बात होती रहती है जीवन में, जब देखो तब मनचाही बात नहीं हुई। जहाँ अनचाही बात हुई वहीं हमने तनाव पैदा करना शुरू कर दिया, भीतर गांठ बांधने लगे। जहाँ मनचाही बात नहीं हुई, कोई अड़चन आ गई, वहीं हमने फिर गांठ बांधनी शुरू कर दी, तनाव पैदा करना शुरू कर दिया, व्याकुल हो गए। और सारे जीवन यही चलता है। अनचाही होती जाती है, मनचाही कभी होती है कभी नहीं होती है, अनचाही होती जाती है, मनचाही कभी होती है कभी नहीं होती है। तो गांठ पर गांठ बांधे जाते हैं। सारे मानस को कितना गांठ गंठीला बना दिया, तो सारे शरीर को कितना गांठ गंठीला बना दिया। इतने बेचैन, इतने दुखियारे। जब आदमी को बहुत दुख होता है, कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता, तो क्या करे बेचारा। अपना गम गलत करने के लिए इधर उधर, कहीं अपने मन को बहलाने के लिए इधर उधर भटकता है। कोई सिनेमा चला जाएगा, कोई थिएटर चला जाएगा, किसी नाच घर में चला जाएगा, किसी खेल तमाशे में चला जाएगा। थोड़ी देर मन बहला रहे, भूल जाए अपने दुख को। कितनी देर अपने मन के बहलाओगे, फिर उस दुख का सामना ही करना पड़ेगा और मुश्किल हो जाएगा दुख का सामना करना। भागने से रास्ता नहीं बनता। कुछ लोग जो बहुत व्याकुल हो जाते हैं दुख से, तो अपना गम गलत करने के लिए चलो एक प्याला उठा ले, शराब पी ले। फिर भागने की बात हुई, पलायन की बात हुई। जब तक नशा है तब तक समझते हैं हमारे में दुख नहीं है, चला गया दुख हमारा। तो नशा उतरते ही दुख और दुगना होकर के सामने आता है, चौगुना होकर के सामने आता है। छुटकारा नहीं हुआ तो कैसे छुटकारा हो इससे। तो कुछ लोगों ने एक रास्ता ढूंढा कि भाई ये बाहरी संसारी बातों में अपने मन को लगाने से तुम्हारे मन के दुख दूर नहीं होंगे। किसी ऐसी बात में लगाओ जिससे सचमुच तुम्हारे मन का दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि जब जब तुम्हारे मन में विकार जागे, विकार जागता है तो व्याकुल होता है, क्रोध जागे तो व्याकुल हो, भय जागे तो व्याकुल हो, ईर्ष्या जागे तो व्याकुल हो, द्वेष जागे तो व्याकुल हो, दौर मनुष्य जागे, दुर्भावना जागे, कुछ जागे मन में विकार कि व्याकुल हो जाएगा। तो समझाया कि भाई जब जब ऐसा होने लगे तो अपने मन को किसी ऐसी बात में लगा दो, किसी देवी में, देवता में, ईश्वर में, ब्रह्म में, किसी संत में, किसी महापुरुष में, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, उसका नाम जपना शुरू कर दो। मन ही मन उसका नाम जपने लगो। तो मन को कोई दूसरा काम मिल गया, उसमें लग गया, तो लगे जैसे विकार दूर हो गए, हमारे दुख दूर हो गए। नाम नहीं जपो तो उसका कोई रूप, उसकी कोई आकृति, उसकी कल्पना करो। हमारी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, किसी संत की, महापुरुष की ऐसी आकृति है, आंख बंद करके उसका ध्यान करो। मन लग गया उस ध्यान में तो लगा जैसे दुख दूर हो गया। बात तो ठीक है, उसका लाभ भी हुआ लोगों को, आज भी होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है तो सर्वज्ञ बन जाता है, सब जान गया, अनजाना उससे कुछ नहीं रह गया। और जानना अपनी 3.5 हाथ की काया के भीतर है, बाहर नहीं। सब कुछ जान गया भीतर। तो उसको ये बात भी समझ में आ गई कि भाई जब जब हम पलायन करते हैं, मन को कहीं और लगाते हैं, चाहे ये बावलेपन में कहीं को खेल तमाशा देखने चले गए अपने दुख मिटाने के लिए, कोई टीवी खोल के बैठ गए अपने दुख मिटाने के लिए, या कोई शराब वराब लेकर के बैठ गए अपना दुख मिटाने के लिए। वो नहीं किया तो कोई मंत्र का जाप करने लग गए, उससे अपना दुख मिट जाएगा। किसी मुहूर्त का ध्यान करने लगे, उससे अपना दुख मिट जाएगा।
अरे दुख मिटता नहीं भाई उससे। ये ऊपर ऊपर एक मुलम्मा लग जाता है, मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर बहुत खूबसूरत मुलम्मा लग गया, पर जो विकार उठे थे वो दबा दिए गए। वो अंतर मन की गहराइयों में जा पहुंचे और वहां भीतर ही भीतर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारी व्याकुलता से छुटकारा होने वाला नहीं। तो एक रास्ता ढूंढा और उसी रास्ते खुद मुक्त हुए, उसी रास्ते खुद बुद्ध बने और वही रास्ता लोगों को सिखाया कि भाई भागो मत, जब जब दुख आए तो उसका सामना करो। दुख आता है मन में कोई विकार जागने पर, तो विकार का सामना करो, उसको साक्षी भाव से देखो। क्रोध जागा है तो देखो क्रोध जागा है, इतना ही जानो क्रोध जागा है। वासना जागी है तो जानो वासना जागी है। भय जागा है तो जानो भय जागा है। जो विकार जागा है उसको साक्षी भाव से देखो, तो देखोगे कि हमने दमन भी नहीं किया, उस विकार को दबाया भी नहीं और उस विकार को खुली छूट भी नहीं दी कि वाणी के स्तर पर या शरीर के स्तर पर कोई बुरा काम कर जाए जिससे अपनी भी हानि औरों की भी हानि। तो न तो दमन करो, न उसको खुला लाइसेंस दो, उसको देखो। ये बीच का रास्ता खोज निकाला, मध्यम मार्ग, उसे देखो, जैसा है वैसे देखो। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। क्रोध आए तो कोई क्रोध को कैसे देखेगा, क्या देखेगा क्रोध को? पहले तो होश ही नहीं रहेगा। क्रोध आया है हमें, क्रोध आते ही सिर पर ऐसे भूत की तरह सवार हो जाएगा कि कुछ नहीं होश हमको, तो देखेंगे क्या उसको? तो अपने साथ एक प्राइवेट सेक्रेटरी रखे, वो हमको होश दिला दे कि देख मालिक तुझे क्रोध आया है, अब तू क्रोध को देख। गुस्सा आया, गुस्से को देख तू। तो प्राइवेट सेक्रेटरी तो 8 घंटे अपनी ड्यूटी बजाएगा और इस गुस्से के साथ हमारी कोई लिखा पड़ी नहीं कि तू उसी समय आना भाई जो हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी हो। वो तो 24 घंटे में कभी आ जाएगा। तो 3 शिफ्ट के 3 प्राइवेट सेक्रेटरी रखें, कैसे कोई रखेगा? और सब जगह लेबर लॉज होते हैं, छुट्टियां देनी पड़ेगी। तो 4 प्राइवेट सेक्रेटरी हो कि 5 हो, कोई कैसे सके? अच्छा किसी ने सका भी और एक रहा उसके पास प्राइवेट सेक्रेटरी, रात दिन एक प्राइवेट सेक्रेटरी है। और आया गुस्सा और उसने कहा मालिक दे तुझे गुस्सा आया, तो पहला काम तो यही करे कि उसी को चांटा लगाए। मूर्ख कहीं का मुझको सिखाता, गुस्सा आया है ना, होश कहाँ है? और मान लो नहीं चांटा लगाया उसे और कहा अच्छा तुमने याद दिला दिया, बड़ा अच्छा किया, अब जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है हम अपने गुस्से को देखेंगे। तो भाई क्या देखोगे गुस्से को? गुस्से का कोई रंग होता नहीं, कोई रूप होता नहीं। आंख बंद करके गुस्से को देखोगे कैसे? जब जब आंख बंद करके गुस्से को देखने की कोशिश करोगे भी, तो जिस बात को लेकर गुस्सा आया है, जिस घटना को लेकर गुस्सा आया है, जिस आदमी को लेकर गुस्सा आया है, बार बार मन में वही आएंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे तो गुस्से को कहाँ देख रहे हो? गुस्से के आलंबन को देख रहे हो ना। जो आलंबन है वो तो गुस्से को और तेज करेगा, वो तो इस आग में और पेट्रोल डालेगा। तो भगवान बुद्ध की बात नहीं समझ में आई ना? गुस्से को देखना है, अमूर्त गुस्से को। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जो बहुत मुश्किल काम है वो कोई महापुरुष कैसे सिखाएगा? जो काम लोग कर नहीं सके वो किसी बुद्ध की शिक्षा कैसी होगी? बुद्ध की शिक्षा तो ऐसी कि जिसको सब कर सकें, कोई भी हो, अनपढ़ से अनपढ़ हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, कोई भी हो, सब कर सकें। तब तो भगवान बुद्ध की शिक्षा, नहीं तो शिक्षा कैसी? तो एक बात उन्होंने जान ली, बुद्ध हुए ना तो सर्वज्ञ हुए, सारी बात जान ली अपने भीतर की। तो एक बात ये जान ली कि जब जब किसी के मन में कोई विकार जागता है, गुस्सा जागे, वासना जागे, भय जागे, ईर्ष्या जागे, कोई विकार जागे मन में, तो उसके साथ साथ शरीर में 2 घटना घटने लगती है। एक घटना जरा स्थूल अवस्था में, दूसरी घटना जरा सूक्ष्म अवस्था में। 2 घटनाएं एक साथ घटने लगेगी। एक घटना तो ये घटेगी कि जो हमारा सांस स्वाभाविक है वो स्वाभाविक नहीं रहेगा, अस्वाभाविक हो जाएगा, जरा तेज हो जाएगा, जरा भारी हो जाएगा। चाहे गुस्सा आए, चाहे भय आए, चाहे वासना आए, कोई विकार जागे, सांस स्वाभाविक नहीं रहेगा। और जैसे ही विकार दूर हुआ कि सांस फिर स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। दूसरी घटना ये कि शरीर पर कोई संवेदना प्रकट होने लगेगी। भारीपन आए, दबाव आए, खिंचाव आए, तनाव आए, गर्मी आए, पसीना आए, धड़कन आए, कुछ न कुछ भीतर होने लगेगा। गुस्सा आए तो भी होने लगेगा, भय आए तो भी होने लगेगा, ईर्ष्या आए तो भी होने लगेगा। मन में कोई विकार जागे, शरीर पर कुछ न कुछ संवेदना होने लगेगी। बस रास्ता पकड़ में आ गया। अमूर्त गुस्से को देखना बड़ा मुश्किल है, अमूर्त वासना को देखना बड़ा मुश्किल है, अमूर्त भय को देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई आदमी थोड़े दिनों भी कोशिश करे तो अपने सांस को देख पाएगा।
साक्षी भाव से अपनी सांस को देखने लगेगा। अगर कोई थोड़े दिनों भी अभ्यास करे तो अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखने लगेगा। बस रास्ता मिल गया। और जब वासना जागने पर, भय जागने पर, ईर्ष्या जागने पर, गुस्सा जागने पर हम सांस को देखते हैं या संवेदना को देखते हैं, सच्चाई से दूर नहीं भाग रहे, पलायन नहीं कर रहे, हम सच्चाई का ही सामना कर रहे हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का इस तरफ का पहलू और उस तरफ का पहलू। एक पहलू में मन पर जागा हुआ विकार, क्रोध जागा है कि भय जागा है कि वासना जागी है कि ईर्ष्या जागी है, जो विकार जागा, और दूसरे पहलू पर ये सांस का तेज हो जाना और शरीर पर संवेदना होनी। तो उसी सिक्के को देख रहे हैं हम, दूर नहीं भाग रहे, पलायन नहीं कर रहे, और देखते 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 विकार दूर होता चला जाएगा, उसकी परतें उतरती चली जाएंगी। बहुत बड़ी बात ये होगी, गुस्सा अभी आया और जैसे हमें गुस्सा आता है, हमारे भीतर गुस्से के जितने संस्कार हमने पहले इकट्ठे कर रखे हैं, जितना संग्रह हमारे भीतर है, वो सारा उबाल खाने लगता है। इस समय के जागे हुए गुस्से के साथ जुड़ जाता है, तो इस समय के जागे हुए गुस्से को और तेज करता है। ऐसे भय आता है तो पुराने भय का संस्कार उसके साथ जुड़ जाता है, वासना आती है, पुराने इसके साथ जुड़ जाते हैं और तेज होने लगते हैं, और तेज होने लगते हैं। ये कुदरत का अपना नियम है, ये प्रकृति का अपना नियम है। तो जैसे ही हम साक्षी भाव से देखने लगे, तटस्थ भाव से इस समय जो गुस्सा आया उसको देखने लगे, वासना जागी उसे देखने लगे, भय आया उसको देखने लगे, तो इस समय जो जागा उसकी परतें तो उतरने लगे। उतरते उतरते वो तो दूर हुआ ही, पुराना संग्रह भी थोड़ा सा उभर करके ऊपर आया और दूर हो गया, ऊपर आया और दूर हो गया। यूं अगर अभ्यास कायम रखता है आदमी, तो अपने भीतर जितना गुस्से का पहले संग्रह कर रखा है, वासना का संग्रह कर रखा है, भय का कर रखा है, जिस विकार का भी कर रखा है, वो उभर उभर के ऊपर आएंगे। उपज्झित्वा निरुद्धन्ति, उपज्झित्वा निरुद्धन्ति, आए उभर करके निरुद्ध हो गए, समाप्त हो गए, आए उभर करके समाप्त हो गए। ते संगूपसमो सुखो, जितना जितना उपशमन हो गया उतना उतना सुख आ गया, और सारे निकल जाए तो निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए, परम सुख का साक्षात्कार हो जाए। ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसे कोई अपनाए। कोई अपने को हिंदू कहे और ये काम करे तो भी उसे लाभ हो जाएगा, कोई अपने को मुसलमान कहे ये काम करे तो भी लाभ हो जाएगा, कोई बौद्ध कहे और ये काम करे तो भी लाभ हो जाएगा। अरे कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी बोली भाषा का हो, किसी रंग रूप का हो, धर्म तो सार्वजनीन, जो बुद्ध होता है सार्वजनीन धर्म सिखाता है, क्योंकि रोग हमारा सार्वजनीन है, कोई सांप्रदायिक रोग नहीं है। जब गुस्सा आता है तो उस पर क्या लेबल लगाएं हम, कि अब के तो हिंदू गुस्सा आ गया, कि अब के बौद्ध गुस्सा आ गया, ये तो जैन गुस्सा आया, क्रिश्चियन गुस्सा आया। अरे गुस्सा गुस्सा है, और गुस्से की वजह से जो व्याकुलता आती है उस पर भी क्या लेबल लगाएं। अब के हिंदू व्याकुलता आई, ये बौद्ध व्याकुलता आई, कि जैन, अरे व्याकुलता रोग है भाई, गुस्सा हमारा रोग है, उसकी वजह से व्याकुलता आई, तो सार्वजनीन रोग है। मलेरिया हो जाए तो उसको हिंदू मलेरिया नहीं कहते, मुसलमान मलेरिया नहीं कहते, बौद्ध मलेरिया नहीं कहते। और जब उसका इलाज ढूंढने जाते हैं बाजार से और कोई कुनैन की गोली देता है तो हम नहीं कहते हिंदू कुनैन की गोली देना भाई, बौद्ध कुनैन की देना कि मुस्लिम कुनैन की देना। कुनैन है भाई, रोग को दूर करने वाली, दूर कर देगी। ठीक इसी प्रकार जब कोई बुद्ध होता है तो सार्वजनीन रोग के लिए सार्वजनीन इलाज देता है, जो सबके काम आए। कोई नहीं कह सके कि इसको मैं कैसे लूँ, ये तो हमारा नहीं। अरे सबका है भाई, तुम्हारा कैसे नहीं? सांस तुम्हारा है ना, सांस को तो देखना सिखाते हैं। देखो सांस को, हिंदू हो तो भी देख पाएगा, मुसलमान हो तो भी देख पाएगा, बौद्ध हो तो भी देख पाएगा, जैन हो तो भी देख पाएगा। और फिर अपनी संवेदना को देखो, शरीर पर गर्मी है, सर्दी है, तनाव है, खिंचाव है, धड़कन है, फड़कन है, तरंगे हैं, जो है देखो उसको। तो हिंदू भी देख पाएगा, मुसलमान भी देख पाएगा, बौद्ध भी देख पाएगा, सब देख पाएंगे, और उसका जो लाभ होगा सबको एक जैसा होगा। तो अपने आप झुकने लगेंगे धर्म के सामने। यार इतने कल्याण की बात भगवान बुद्ध ने सिखा दी, इससे बड़ा कल्याण हमारा क्या होगा कि सारे दुखों से हमारा छुटकारा होने लगा। पूरे उपदेश की बात नहीं है, करने की बात है। केवल कहने से, सुन लेने से, केवल कहने से और मान लेने से बात बनती नहीं, करने से बात बनती है। और जहां करने लगे तो होश आता है कि भाई तो बड़े काम की बात है। इसीलिए देखते हैं कि विपश्यना करने जब लोग आते हैं तो पहले तो आने के पहले तो झिझकते हैं। मैं अपनी बात कहूं, मैं भी बहुत झिझका, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में। मेरा बहुत बड़ा भाग्य था, कोई ऐसा रोग लग गया
ऐसा रोग लग गया कि उसका कोई इलाज नहीं होता। ब्रह्मदेश में रहते हुए वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, कोई इलाज नहीं हुआ। हर 15वें दिन उसका बहुत बड़ा आक्रमण हो जाए, अटैक आ जाए, और उनके पास कोई इलाज नहीं, और पीड़ा इतनी ज़्यादा हो कि मोर्फिया का इंजेक्शन दे दें, अफीम की सुई दे दें। अफीम की सुई से कोई रोग का इलाज थोड़ी हुआ। थोड़ी देर उस नशे में रहे, फिर वैसे ही रहे, फिर 15वें दिन अटैक आ जाएगा। यूँ चला 4-5 वर्ष तक। तो डॉक्टरों ने कहना शुरू किया, भाई अब तो तुम अफीम का व्यसन हो जाएगा, रोज अफीम की सुई लेनी पड़ेगी। तो बड़ी खतरनाक बात। तो इससे छुटकारा पाओ, तुम्हारे इस रोग का तो कोई इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं है, हम जानते हैं। पर बार बार अपने काम धंधे के लिए, व्यापार के लिए तुम विदेशों में जाते हो, पश्चिमी देशों में जाते हो, वहाँ पर इन लोगों ने कोई और पेन किलर ढूंढ लिया होगा। तो अफीम को छोड़ करके कोई और दवा तुम्हें ऐसी मिल जाएगी, रोग निकाल सके ऐसा तो नहीं, लेकिन पेन किलर कोई मिल जाएगा। तो आया यहाँ पर उनकी बात सुन करके, बहुत दिनों स्विट्जरलैंड रहा, बहुत दिनों जर्मनी रहा, इस देश में इंग्लैंड में भी रहा, बहुत दिनों अमेरिका रहा, जापान में रहा। वहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया, बहुत धन खोया, बहुत समय खोया। फिर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि घर लौटा तो ये हालत थी कि रोग बढ़ता ही गया, जैसे जो दवा करते करते रोग और बढ़ता चला गया, कोई इलाज नहीं हुआ। अगर कोई इलाज कर देता तो ये भगवान का कल्याणकारी मार्ग हमें कैसे मिलता। तो किसी भाई ने हमको कहा कि ये हमारे एक संत हैं, गृहस्थ हैं, सयाजी उबाखेन, बर्मा के अकाउंटेंट जनरल थे, 10-10 दिन का शिविर लगाते हैं, इनके पास चले जाओ, कौन जाने ठीक हो जाओ। तो गया उनके पास, उनकी बातें सुनी, इतनी प्रिय लगी, मन को इतनी शांति देने वाली लगी। तो कहा महाराज आपके शिविर में हम आएंगे। लेकिन घर आने के बाद तो ये हालत हुई कि भीतर ही भीतर कशमकश चलने लगी, हम कैसे जाएं। बचपन से बुद्धि पर लेप लगा, यही पाठ पढ़ते रहे, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अरे अपने धर्म में मर जाना अच्छा, कभी पराये धर्म में मत जाओ। अरे तो पराया धर्म, अरे बाप रे बाप, बौद्धों का धर्म, ये आत्मा को नहीं माने, ये परमात्मा को नहीं माने, ये नास्तिक लोग, हम भी कहीं से नास्तिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तब तक ये होश ही नहीं था कि आत्मा को मान करके क्या मिल जाने वाला है। भाई इस परमात्मा को मान करके भी क्या मिल जाने वाला है। जो आत्मा को मानने वाले उनके तो राग निकल गए क्या, सर द्वेष निकल गए क्या, और जो परमात्मा को मानने वाले उनके सारे दुख दूर हो गए क्या, उतने ही दुखियारी हैं वो। तो क्या मिल जाने वाला है। लेकिन एक बावलापन सिर पे सवार था, बचपन से वही लेप लगे थे। बहुत झिझक हुई। तो जैसे मुझे झिझक हुई, फिर गया उसमें से गुजरा तो देखा, अरे सही धर्म क्या होता है, सचमुच धर्म किसको कहते हैं, तब तक जानता ही नहीं था। एक नशा था सिर पर, अपने आप को बहुत धर्मवान मानता था, शील सदाचार में कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था, लेकिन फिर भी धर्म क्या होता है ये नहीं जानता था। उसमें से गुजरा तो पता लगा कि सही धर्म क्या होता है। तो झिझक बहुत बड़ी रही। तो जानता हूँ बहुतों को झिझक होती है, आने में झिझक होती है। एक बार आ जाए, रस चख ले तो पता लगे, अरे कितने कल्याण की बात है, कितने मंगल की बात है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको एक जैसा लाभ मिलता है। ये जो भगवान की बात सारी दुनिया में फैली, वो केवल वाणी की उपदेश से नहीं फैली, लोगों को उसका लाभ हुआ। अभी जैसे भंते ने बताया, महाराज अशोक, उनके जो गुरु थे मोगली पुत्र तिस, उन्होंने जगह जगह उन अरहंतों को भेजा। जैसे राजदूत भेजता है राजा, वैसे धर्मदूत भेजे जगह जगह कि जाओ ये कल्याणकारी विद्या सारे विश्व में फैले, लोगों का कल्याण हो जाए। तो ये विद्या लेकर के ही गए, कैसे अपने मन को वश में करें पहली बात, और कैसे मन को वश में करके गहराई तक उसके विकार निकाल दें, मन को निर्मल कर लें। मन वश में हो जाए, मन निर्मल हो जाए, सारे दुख अपने आप दूर हो गए, कुछ करना कराना नहीं पड़ता। तो जहां जहां ये लोग गए, ये विद्या सिखाई, विद्या सीखी कि लोग एकदम मोहित हो गए, बिल्कुल इसके प्रति इतने आकर्षित हो गए कि इससे ऊंची कोई बात हो नहीं सकती। तो सारी दुनिया में फैलने लगी। आज देखते हैं ठीक इसी प्रकार किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी देश का व्यक्ति हो, गुजरता है इसमें से तो लगता है कि मुझे अपार धन मिल गया, इतना बड़ा रत्न मिल गया। इतने दुखों से लोग, व्याकुल लोग अपने दुखों के बाहर निकल आते हैं। वासनाओं में व्याकुल रहने वाले वासना के बाहर निकल जाते हैं, क्रोध में व्याकुल रहने वाले क्रोध के बाहर निकल जाते हैं, तरह तरह के व्यसनों में व्याकुल रहने वाले, किसी को अफीम का नशा, किसी को शराब का नशा, किसी को जुए का नशा, किसी को व्यभिचार का नशा, सब सारे नशों से दूर हो जाते हैं, बड़ा सुखी जीवन जीने लगते हैं, बड़ा शांति का जीवन जीने लगते हैं। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या के लोगों में जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया।
इतना तबादला हो गया उनके जीवन में। तो धर्म तो अपना फल देता है, आशु फल देता है, अकाली को। धर्म का फल आने में देरी नहीं लगती। संदिग्ध को अभी देखो, सच्चाई को देखना शुरू करो और अभी फल आना शुरू हो जाएगा। अकाली को, अकाली को ऐसा हो जाएगा तो यही पक्षी को कहने लगेगा सबको, आ तू भी करके देख भाई, तू भी करके देख, इतना अच्छा है। बस ऐसे ही फैलता है। एक चख के चला जाए तो फिर उसके परिवार के सारे लोग आने लगेंगे, अरे सचमुच इसने चखा है ना, वो कहता मैं चख कर आया हूँ, इतना अच्छा है, मेरा इतना लाभ हुआ है। यही पक्षी को, यही पक्षी को फिर अपने मित्रों से कहता है, अपने रिश्तेदारों से कहता है, और बात यूं फैलती है। तो किस प्रकार सारे भारत में ही नहीं, बाहर भी फैलनी शुरू हो गई। अब तक 80 देशों के लोग इस तरह के शिविरों में आए और अपना कल्याण किया लोगों ने। और कल्याण होने के बाद अब वो लोग बुलाते हैं, मुसलमान बुलाते हैं अपने मस्जिद में शिविर लगाने के लिए, और जहाँ शिविर लगते हैं वहाँ कर्मकांड सारे बंद हो जाते हैं। तो 2-2 शिविर एक साथ लगे, लेकिन फिर भी 3 शुक्रवार उनके आए, सारे कर्मकांड उनके बंद रहे, क्योंकि उनको पता लग गया कि इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं है। क्रिश्चियन लोगों के गिरजाघर में शिविर लगते हैं, सारे कर्मकांड बंद, वहां पर यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सारी बात मान के स्वीकार करके करते हैं, क्योंकि पहले आके चख लिया उनके गुरुओं ने, उनके जो पादरी हैं उन्होंने देख लिया बहुत अच्छी चीज है, तो आने लगे, लोगों को भेजने लगे। ऐसे ही हर तबके के लोग, जैनी लोग, उनके न जाने कितने मुनि और कितने साध्वी अब तक अनेक शिविरों में आ गए। तो किसी संप्रदाय का हो क्या फर्क पड़ता है? भगवान का धर्म सबके लिए सार्वजनीन धर्म है। उसमें कहीं ऐसा है ही नहीं कि भाई पहले तुम अपने आप को इस नाम से पुकारने लगो तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। भाई नाम तो बदल लें पर धर्म धारण नहीं करें तो कल्याण कैसे होगा? जन्म का अंधा हो और नाम रख ले नयन सुख, तो उसका नयन सुख थोड़ी हो गया। जन्म का दुखियारा हो, नाम रख ले सदा सुख, तो सुखी थोड़ी हो गया। तो भगवान का जो धर्म है, बड़ी अच्छी बात हुई कि बाबा साहब ने एक रास्ता लोगों को बताया, चलो इस रास्ते पर, अब अगर चलोगे तो लाभ होगा। तो चलने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मन को वश में करना होगा। हजार चाहें कि हम शील का पालन करें, समझते तो खूब है शील पालन करना ही चाहिए, तो करें कैसे? मन वश में नहीं है ना। तो भगवान ने जो मन को वश में करने का तरीका बताया कि अपने सांस के सहारे मन को वश में करो, वो जब तक नहीं किया तब तक शील का पालन कैसे होगा ठीक से? और शील का पालन होने भी लगा, मन वश में होने भी लगा, और विकार पूरी तरह निकले नहीं, फिर व्याकुलता आएगी, फिर शील टूटने लगेंगे। बात बनी नहीं जब तक कि सारे विकार नहीं निकल गए। तो प्रज्ञा उन्होंने सिखाए, जो विपश्यना सिखाए, इन संवेदनाओं को देखते देखते शरीर पर जो कुछ महसूस होता है उसको देखते देखते सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कल्याणकारी धर्म जिस महापुरुष ने दिया, वो केवल भारत में ही पूज्य नहीं, सारे विश्व में पूज्य हो गया। भारत के लिए बड़े गौरव की बात हो गई। ऐसा एक भारत का लाल कि जिसको केवल भारत के लोग सिर झुका के नहीं नमस्कार करते, दुनिया के लोग सिर झुका के नमस्कार करते हैं। मट्टी की मूर्तियां बना बना करके, पत्थर की मूर्तियां बना बना के, संगमरमर की मूर्तियां बना बना करके, यहाँ तक कि रत्नों की मूर्तियां बना बना करके उसको नमस्कार करते हैं। किस लिए करते हैं? कि इतना बड़ा कल्याणकारी धर्म इस व्यक्ति ने दिया, जिससे इतना बड़ा लोक कल्याण हुआ। हम केवल इतना ही गर्व करके रह जाएं कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इतना बड़ा धर्म सिखाया और खुद धारण नहीं करें, तो वो गर्व हमारे क्या काम आया? भगवान बुद्ध ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, हम तो ऐसे नहीं है ना। हमारे बाप दादा ऐसे थे, ऐसे थे, हमारे बाप दादा करोड़पति थे, हम तो कंगाल है ना। लोग तो हमको देखेंगे, हमारे बाप दादा जैसे थे उससे हमको क्या मिला? भगवान बुद्ध कैसे थे वैसे हम भी बने, तो उस रास्ते चलेंगे तब बनेंगे। भले जरा जरा सा चलना ही शुरू करें, कदम तो उठाना शुरू करें। अच्छा है कि भारत के बाहर भी इस तरह के भिक्षु जगह जगह घूम करके भगवान की वाणी की घोषणा करते हैं और लोगों में एक चेतना जगाते हैं। अब उसको धारण करने के लिए साधना करनी चाहिए। अगर सचमुच भगवान बुद्ध के धर्म का रस चखना है तो जब तक खुद साधना नहीं कर लोगे, मन को वश में करना नहीं सीख लोगे, मन को निर्मल करना नहीं सीख लोगे, तब तक वो वेदों की ही बात रह जाएगी। जैसे वो कहते रह गए, यो विश्वाभिविपश्यति भुवना विपश्यति, हो गई विपश्यति, करता कोई नहीं, जानता कोई नहीं, बातें बातें विपश्यना की। ठीक इसी प्रकार बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा ना कहा तो गीता का पाठ करता था, खूब पाठ करता था। तो गीता का पाठ करते हुए न जाने कितने श्लोक रोज पढ़ते पढ़ते याद हो गए। एक श्लोक उसका,
जिन्होंने कभी किया होगा गीता का पाठ तो पढ़ा होगा उसमें, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग नहीं देख पाते, विपश्यना नहीं कर पाएंगे। जिनके ज्ञान चक्षु जागे हैं वही विपश्यना कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे तब तो यही नहीं जानते थे, खाली पाठ करते थे। विपश्यना में से गुजरे तो पता लगा कि आदमी कहना क्या चाहता है। भगवान की वाणी का असर सब जगह फैला, जगह जगह फैला। क्या कहना चाहता है? उत्क्रामन्तं। विपश्यना करने वाले व्यक्ति को मानस शरीर पर होने वाली सारी बातें मालूम होगी, चित्त की सारी बातें मालूम होगी, चित्त कैसे काम करता है। मानस के 4 मोटे मोटे खंड होते हैं। भगवान ने उनको कहा विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार। ये उन दिनों की भाषा। हमको भाषा से, शब्दों से कोई लेना देना नहीं। बात समझे क्या है, क्योंकि जीवन में उतारना है। इसी को किसी ने कह दिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चाहे सो कहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। काम क्या करता है? मानस का वो खंड जिसका काम केवल जानना है और कुछ नहीं। ये हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सब निर्जीव हैं, निष्प्राण हैं, इनमें कहीं जीवन नहीं। जब तक मानस का ये खंड इनके साथ नहीं जुड़ जाए तब तक ये काम नहीं करते। आंखें हमारी बिल्कुल ठीक हो, खुली भी है, सामने रोशनी है, कोई आदमी आया चला गया, हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। कान हमारे बिल्कुल ठीक है, हमने कान में रुई नहीं ठोंस रखी, कोई हमारा नाम पुकार रहा, हमको बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ऐसा बहुत बार जीवन में होता है। क्यों होता है? मानस का ये खंड उसके साथ लगा नहीं। हमारा मानस का ये खंड कान के साथ लगा हुआ है और एक आवाज आ रही है, बड़ी मधुर आवाज, उसी में लगा हुआ है सारा का सारा। आंखें खुली है, कुछ नहीं दिखाई देता। या आंख के साथ लगा है, बहुत सुंदर रूप है सामने, या बहुत सुंदर दृश्य है, या कोई पुस्तक में लगा है, कान में आवाज आती है, नहीं सुनाई देगी। तो जब तक मानस का ये खंड शरीर की इन इंद्रियों के साथ नहीं लग जाएगा तब तक ये काम नहीं करेंगी। और मानस का ये खंड केवल इतना ही कहेगा, भाई कुछ खटपट हुआ, कहीं कुछ खटपट हुआ, कान पर हुआ कि आंख पर हुआ कि नाक पर हुआ कि जीभ पर हुआ कि त्वचा पर हुआ, कुछ हुआ, इतने में मानस का दूसरा खंड अपना सिर उठाएगा। उन दिनों की भाषा में कहा संज्ञा, उसका काम पहचानना है, और केवल पहचानना ही नहीं, पहचान के मूल्यांकन कर देना है। कान में शब्द आया, झट पहचानेगा ये मानस का दूसरा खंड। क्या शब्द आया? अरे गाली का शब्द आया, अरे प्रशंसा का शब्द आया। गाली का आया तो कहेगा बहुत बुरा है, प्रशंसा का आया कहेगा बहुत अच्छा है। उसने पहचान भी लिया और मूल्यांकन भी कर दिया, ये उसका काम। तीसरा खंड अपना काम करेगा, उसे उन दिनों की भाषा में कहा वेदना। ये वेदना तो शुरू हो जाती है, जहां स्पर्श होगा वहीं शुरू हो जाती है, पर जैसे ही संज्ञा ने कह दिया बहुत अच्छा, वैसे ही सारे शरीर में सुखद संवेदना चलनी शुरू हो जाएगी। और जहां इस संज्ञा ने कह दिया बहुत बुरा, अरे गाली है बहुत बुरा, सारे शरीर में दुखद संवेदना चलने लगेगी। इसके बाद चौथा खंड अपना सिर उठाएगा, जिसको कहा संस्कार। उसका काम प्रतिक्रिया करना। जानने वाले ने जाना कुछ शब्द आया है, पहचानने वाले ने पहचाना अरे गाली का शब्द है, अनुभूति करने वाले ने अनुभूति की कि सारे शरीर में दुखद संवेदना चलने लगी। अब ये चौथा बावला ये प्रतिक्रिया करेगा, अरे बहुत बुरा, गाली का शब्द बहुत बुरा, ये संवेदना बहुत बुरी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, द्वेष की प्रतिक्रिया करेगा। ऐसे ही शब्द आया कान में, पहचानने वाले ने पहचाना अरे प्रशंसा का शब्द है, बड़ा अच्छा है, सारे शरीर में सुखद संवेदना चली और तुरंत प्रतिक्रिया होने लगी, बहुत अच्छा, और चाहिए और चाहिए, प्रशंसा तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये राग, ये द्वेष, ये राग, ये द्वेष कान पर आने वाले शब्द से ही नहीं होता। आंख पर रूप दिख जाए, बहुत खूबसूरत दिखे, सुखद संवेदना होगी, चाहिए चाहिए करने लगेंगे। बहुत भयावह दिखे, आंख बंद करके भागेंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। नाक में कोई गंध आई, बड़ी मधुर लगी, चाहिए चाहिए करने लगेंगे। कोई गंदी गंध आई, नाक बंद करके भागेंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जीभ पर कोई रस पड़ा, बहुत स्वाद, तो चाहिए चाहिए। कड़वा कसेला थू थू करके भागेंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को छू गया, वस्तु को छू गया, बहुत प्रिय लगी, चाहिए चाहिए। कहीं अंगारे को छू गया, हाथ पीछे करते, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और जैसे ये 5 इंद्रियां हैं, वैसे मन भी अपने आप में एक इंद्रिय है और उसके विषय होते हैं। कोई विचार जागा, कोई सुखद विचार जागा तो चाहिए चाहिए, दुखद विचार जागा तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये जो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए की बीमारी लग गई, ये राग ये द्वेष की बीमारी लग गई, व्याकुल होने लगा। ये सारी बात भगवान बुद्ध ने गहराई से जाकर के समझ ली और उसी की ये गूंज फिर आती रही। कोई भगवान बुद्ध के 500 वर्ष के बाद गीता लिखी गई।
तो गूंज आती रही उसमें। तो क्या गूंज आए तब तक तो समझ में नहीं आता था। उत्क्रामंतं, मानस का ये हिस्सा उठा, खड़ा हुआ, जिसका काम जानना है। उत्क्रामंतं स्थितं, दूसरा का काम रुक करके जानना, क्या हुआ भाई, कैसी आवाज है ये, कैसी गंध है ये, कैसा रूप है ये। स्थितं, और फिर उसकी वजह से जो संवेदना चली, सुखद चली तो सुख भोगने लगा, दुखद चली तो दुख भोगने लगा। भुंजानं, भुंजानं लगा भोगने, लगा भोगने। तो गुणान्वितं, गुणान्वितं लगा बंधने, लगा बंधने, गांठे बांधता है। जब सुख भोगता है तो राग की गांठे बांधता है, दुख भोगता है द्वेष की गांठे बांधता है। ये सारा प्रपंच जो आदमी देख लेवे अपने भीतर, वो विपश्यना करता है, उसके बाहर निकल जाएगा। लेकिन बातें ही बातें ना, गीता का पाठ करते रहे तो कुछ मिला मिलाया नहीं ना। न तो हमारा गुस्सा दूर हुआ, न हमारी वासना दूर हुई, न हमारा भय दूर हुआ। चाहते तो बहुत थे ये सब दूर हो जाए, तो दुख दूर हो जाए, लेकिन जब तक विद्या नहीं, उसको कैसे अपनाया जाए ये नहीं जानते, उसको अपनाते नहीं, धर्म को धारण नहीं करते, तब तक कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो ये बड़ी कल्याण की बात कि भगवान बुद्ध की सिखाई हुई, और इसके पहले भी और न जाने कितने बुद्ध हुए। गूंज चलती रहती है उनकी वाणी की, बात सब भूल जाते हैं लोग। गूंज चलती है जगह जगह। जैसे अभी भंते ने कहा, देखो अपने आप को, सब कहते हैं देखो अपने आप को, कैसे देखे, लेकिन अपने आप को देखे बिना छुटकारा नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अपने भीतर की सच्चाई को जाने बिना छुटकारा नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कैसे देखें, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाएं, मैं कौन हूं, तो बचपन से सुनते आए कि मैं तो आत्मा हूं, बिल्कुल निर्लेप, अमर, जरा सा परिवर्तन नहीं आता उसमें ऐसा, तो आंख बंद करके ही ध्यान करेगा, मैं देख एक आत्मा हूं जो बिल्कुल निर्विकार है, निर्लेप है। अरे काहे का निर्विकार है, इतना विकार भरा पड़ा तेरे भीतर, इतनी गंदगी भरी पड़ी तेरे भीतर, और झूठा लेप लगाता है कि मैं निर्विकार हूं, मैं निर्लिप्त हूं। झूठ ही झूठ की कल्पना करेगा, सच्चाई से बहुत दूर। कल्पना का धर्म से कोई लेन देन नहीं होता। धर्म तो जो सच्चाई सामने आई उसी को साक्षी भाव से देख, उसे दृष्टा भाव से देख, भोक्ता भाव दूर कर, साक्षी भाव से देख। ये विद्या जब तक नहीं हो तब तक पूरी उपदेशों से कुछ होता हुआ तो नहीं। जगह जगह यही बात, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। पर कैसे जान अपने आप को? जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अरे पर कैसे जान ले अपने आप को? ऐसा हम नहीं कहते कि भगवान बुद्ध के बाद 500 वर्ष तक जो ये विद्या बड़े शुद्ध रूप से चलती रही, उसके बाद विद्या लुप्त हो गई देश से, इसमें कोई संदेह नहीं, गूंज रही लोगों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं था कि जो अपने भीतर देख करके कुछ सच्चाई को थोड़ी बहुत तो जानता हो। अनेक संत हुए जो अपने भीतर सच्चाई को देखने का काम करने लगे, उनको लाभ हुआ। लेकिन जो पवित्रता थी इस साधना की, इस विधि की, वो तो देश से लुप्त हो गई, तो पूरा लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए जरा जरा सा भी लाभ प्राप्त हुआ तो उसकी बड़ी प्रशंसा कि अपने भीतर सच्चाई को देखने से देखो ऐसा लाभ होता है, ऐसा लाभ होता है। विद्या देश से लुप्त हो गई तो जो कल्याण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देश की सारी जनता कर्मकांडों में उलझ गई, देश की सारी जनता अंधभावावेश में, भक्ति में उलझ गई, या और हुआ तो ज्ञान के चक्कर में ऐसा कि वाद विवाद, आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है तो एक है कि दो हैं, ये द्वैतवाद है या द्वैतवाद है। अरे देश की कैसी दुर्गति हुई। कोई आदमी अपना सारा जीवन इस बात में खो दे कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही है। अरे इस बात में खोने के बजाय इस बात में लगाया होता कि लोगों के विकार दूर होते, राग दूर होता, द्वेष दूर होता, क्रोध दूर होता, तो लोग कल्याण होता। तू अपना भी राग दूर कर लेता, द्वेष दूर कर लेता, तेरा कल्याण हो जाता। लेकिन ऐसा बावलापन लोगों पर सवार हुआ कि केवल दार्शनिक बातों का झगड़ा, आत्मा है नहीं है, परमात्मा है नहीं है तो दो है कि तीन है कि त्रैतवाद की, द्वैतवाद की, अद्वैतवाद की, विशिष्टा द्वैतवाद की, द्वैता द्वैतवाद। अरे बावलापन ही बावलापन। ये है कि वो है। तुझे अपने मन के विकार निकालने हैं ना, उसको निकाले बिना तेरा कल्याण कहाँ होगा? तेरे मन से राग नहीं निकलता, द्वेष नहीं निकलता, तेरे मन से क्रोध नहीं निकलता, वासना नहीं निकलती, भय नहीं निकलता, दुखियारा ही दुखियारा रहेगा। इस वाद को मान चाहे उस वाद को मान। ये बावलापन सारे देश में चल पड़ा, बहुत बड़ी हानि हुई। लेकिन जो बीती बात उसको रोने से अब क्या होगा? जागे तभी सवेरा, अब जाग गए, दिन उगाया, अभी अब काम करना है। तो जो लोग अपने आप को भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धालु मानते हैं, मानना भी चाहिए, उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि ऐसा आदर्श जीवन जिए। कोई प्रलोभन से कोई व्यक्ति इस धर्म पर आने वाला नहीं। अन्य अनेक प्रकार के धर्म, ऐसे संप्रदाय हो सकते हैं
जो अपने धन के बल पर लोगों को अपनी ओर खींचे। ऐसे संप्रदाय हो सकते हैं जो डंडे के बल पर अपनी ओर खींचे। बुद्ध का धर्म तो ऐसा होता है कि आदमी को उजला देख करके अपनी ओर खींच लेगा। तो उजला जीवन जिएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे जो इतनी सुख शांति वाला है, हमारे भीतर इतनी सुख शांति देता है, हमारी सुख शांति बाहर प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जब आदमी दुखियारा होता है, गुस्सा पैदा करता है, दुखियारा होता है, भय पैदा करता है, दुखियारा होता है, कोई विकार पैदा करे, दुखियारा होता है, वो दुख अपने तक नहीं रखता, बांटता है लोगों को, सारे वातावरण को दुखी कर देगा। जब गुस्सा आएगा तो खुद ही दुखी नहीं होगा, सबको दुखी कर देगा, जो आसपास आएंगे। खुद भी दुखी रहेगा, औरों को भी दुखी करेगा। ये विद्या सीख लेगा ना, खुद दुखी होगा ना औरों को दुखी करेगा, सुख शांति बांटेगा। जहां बैठ जाएगा, जिससे बात करेगा, वहीं शांति, वहीं शांति। लोगों को लगेगा तो बड़े काम की चीज है। शांति किसे नहीं चाहिए? सभी तो अशांत हैं, सभी तो बेचैन हैं। अपने माथे पर चाहे जैसा बिल्ला लगाएं फिरे, ये नाम वाला बिल्ला लगाएं या वो नाम, क्या फर्क पड़ता है? सभी दुखियारे, सभी बेचैन। ये कल्याणकारी विद्या मिल जाए, सभी सुखी हो जाएं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ जो मंदिर बनाया और भगवान बुद्ध के नाम पर जो भी काम करते हैं, उसमें 4 चांद लगने चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए कि खुद तो सुखी हो ही जाएंगे, खुद को तो जीवन में शांति आने लगेगी, घर में जो अनेक प्रकार की कलह होती है परस्पर, सब दूर हो जाएगी। जिन घरों में विपश्यना करने लगते हैं लोग, इतनी शांति आती है, इतनी शांति आती है, इतना सुख फैलता है, इतनी समृद्धि फैलती है, सारी बातें साथ होती हैं। लोकीय लाभ भी होता है, पारलौकिक लाभ भी होता है, लोकोत्तर लाभ भी होता है, सारे लाभ होते हैं धर्म में। खूब सुख शांति फैलती है, समृद्धि फैलती है, और लोगों के लिए बड़ी आकर्षण की बात होती है। देखिए, धर्म के रास्ते चलने पड़ा लगा और कितनी शांति इनके यहाँ, इनके घर में। हम भी ऐसा क्यों ना करें? तो ऐसा आदर्श जीवन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, केवल अपने भले के लिए ही नहीं, औरों के भले के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सिर पर उठाना है। तो बहुत अच्छा जीवन जिए, बहुत सुख शांति का जीवन जिए, आदर्श जीवन जिए। हर एक लोगों को, किसी संप्रदाय का भी क्यों न हो, इसलिए नहीं कि वो अपने को बौद्ध कहने लगे, क्या फर्क पड़ जाएगा अपने को बौद्ध कहें या न कहें। अच्छे आदमी बन जाए, धर्मवान बन जाए, सुखियारे हो जाए, बस बात बन गई। अगर शील सदाचार का जीवन जीने लगे, मन को वश में करके अपना जीवन जीने लगे, मन को निर्मल करके अपना जीवन जीने लगे, अरे भाई, भगवान बुद्ध के रास्ते चलने वाले हैं ना। और ऐसा नहीं किया तो 1000 अपने को बौद्ध कहते रहो, भगवान बुद्ध के रास्ते चलने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन अनेक लोग जीने लगे। उसका एक ही रास्ता है कि खुद ऐसा अच्छा जीवन जी करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, खींचे। फिर देखें, एक बार फिर सारे संसार में धर्म का प्रकाश फैलेगा, फैलेगा ही, समय आ गया। अब धर्म का डंका बजा है, सारा संसार के सोए हुए लोग जागेंगे, सारे संसार के दुखियारे लोग फिर अपने दुखों के बाहर आएंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस रास्ते चलने के लिए कमर कसी है, वो सचमुच धर्म धारण करते हुए आगे चलें, अपना भी कल्याण करें, औरों के भी कल्याण का कारण बने, अपना भी मंगल साधें, औरों के भी मंगल का साधन बने, अपनी भी मुक्ति करें, औरों की भी मुक्ति का कारण बने। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोगों का मंगल ही होता है, कल्याण ही होता है, स्वस्थ मुक्ति ही होती है। जो जो लोग इस धर्म सभा में आए, उनके सब में प्रेरणा जागे कि शुद्ध धर्म कैसे धारण करें, कैसे दुखों से विमुक्त हो जाएं, अपना भी मंगल साध लें, औरों का भी मंगल साध लें। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु साधु साधु साधु। तो आपने धर्म रस का पान किया।